اولاد عبداللہ کی جگئی پارے فرماتے ہیں لوگوں اذا مررتم بریاض الجنہ فردو قالوا ما ہی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ قال رسول اللہ حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یا جماعت العلماء اللہ اللہ میرے آقا آمنہ کے لال نے فرمایا کہ لوگوں سنو اللہ اللہ مصطفیٰ جان رحمت کا قول ہے لوگوں اس کو غیر کا مت سمجھنا اور اس کو ہلکا بھی مت سمجھنا میرے مصطفیٰ کا فرمانا ہے شفیع مذنبین کا فرمانا ہے دونوں جہان کے مالک و مختار کا قول ہے آقا فرماتے ہیں کہ اذا مررتم بریاض الجنہ تو جب تم جنت کے کیاری کے پاس سے گزرو تو چار لیا کرو قالو صحابہ نے کہا موہی یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول دنیا میں بھی جنت کی کیاری ہوتی ہے کیا دنیا میں جنت کی کیاری ہے تو کیا ہے جنت کی کیاری کہاں ملے گی کیا بنگلہ دیش میں ہے کیا بھارت میں ہے کیا انڈیا میں ہے کیا پاکستان میں کیا افریقہ میں ہے کیا امریکہ میں ہے کیا ہالینڈ میں ہے کیا تھائلینڈ میں ہے اللہ کے پیارے حبیب یہ تو بتا دے کہ عرب کی کس زمین میں عرب کے کس دھرتی میں اور عرب کے کس کونے میں یہ جنت کی کیاری ملے گی آقا نے فرمایا اے صحابہ میرے قریب آؤ توجہ کرو اور دھیان لگا کے سنو آقا فرماتے ہیں کہ سنو جنت کی کیاری ڈھونڈنے کے لیے نہ عرب آنے کی ضرورت نہ بھارت جانے کی ضرورت نہ بنگلہ دیش کی حاجت ہے نہ پاکستان کی ضرورت ہے اگر تم کو جنت کی کیاری دیکھنی ہے اور جنت کی کیاری کے پاس تم کو جانا ہے وہاں چلنا ہے وہاں بیٹھنا ہے تو وہ جماعت علماء ہے وہاں جاؤ جنت کی کیاری سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت مسلک اعلی حضرت نعرہ تکبیر نعرہ رسالت تو لوگوں علماء کو کمزور سمجھ رہے ہو کہ یہ علماء کرام تمہارے در کے بھکاری ہیں سمجھ رہے ہو کہ یہ علماء کی شان کم ہے ہرگز نہیں میں کہتا ہوں چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں تم آج پیر کو لے کر کے پاگل بیٹھے ہو اور علماء سے دور ہو رہے ہو سنو جیسے پیر کو تم مانتے ہو اس سے کہیں زیادہ 99% زیادہ عالم کو ماننا ضروری ہے سبحان اللہ بے شک ہے کوئی مائی کا لال جو میرا چیلنج قبول کرے اور کہے کہ نہیں عالم کی عزت کم ہے پیر کی زیادہ ہے کوئی مفتی یہاں جامعہ ازہر سے پڑھے ہوئے دو لوگ ہیں ہمارے استاد گرامی موجود ہیں اور کلیچک میں ایک نہیں سینکڑوں علماء کرام موجود ہیں کوئی مائی کا لال پرمان نہیں کر سکتا کہ عالم سے زیادہ پیر کی عزت کرنی چاہیے کیوں بھائی اللہ فرماتا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء لوگوں سنو تم آیت پڑھتے اور کچھ دلال بوکتا آ کر کے یہ پڑھتا ہے کہ اللہ انا اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون کہ اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی دنیا کا غم ہے نہ آخرت کا خوف ہے اب آگے نہیں پڑھتا ہے آگے پڑھے گا تو پیر پکڑا جائے گا مرید بھی پکڑا جائے گا آگے کیا ارشاد ہوتا ہے اٹھاؤ قرآن رب کا فرمان دیکھو اللہ فرماتا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء اس کو یاد رکھو اور اللہ آگے جو آیت الا ان اولیاء اللہ میں فرماتا ہے وہ ہے الذین آمنوا وکانوا یتقون بولو ذرا جھوم کے بولو سبحان اللہ اور مچل کے بولو سبحان اللہ اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں سنو کان کھول کر کے سنو اللہ فرماتا ہے کہ اللہ کی ولیوں کو نہ یہاں کا ڈر ہے نہ آخرت کا غم ہے کہیں کا بھی ان کو ڈر نہیں ان کو غم نہیں ہے اور اللہ کے ولی کون ہے الذین آمنوا جو پکے مومن ہیں وکانوا یتقون اور تقوی پرہیزگاری کا دامن نہیں چھوڑتے سبحان اللہ بے شک اب یہ پیر آیا پیر نماز نہیں پڑھتا مریدین تو کہتے ہیں تمہاری طرح ہمارے پیر ہیں کعبہ شریف میں جا کے پیر نماز پڑھ لیتے تو ہم کہتے ہیں کہ بیٹا ٹھیک ہے پیر صاحب کعبہ شریف میں نماز پڑھ لیتے تو پیر صاحب کو بولو کہ ٹھیک ہے
सब पीर के बारे में नहीं बोल रहा हूं मैं, बातिल जो लोग हैं उनके बारे में बोल रहा हूं, गलत फिर सोच लेना मत। अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदा नहीं छोड़ेंगे। अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, या अली, नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे। अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, या अली, नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे। अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह। কাছে যাচ্ছে তারপরে টান। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था कि तमाम पीरों के बारे में मत सोचिएगा, सब बातिल नहीं होते, कुछ हक भी होते हैं, अल्लाह वाले भी होते हैं। अब सबको एक ही तराजू में नापिएगा तो नहीं चलेगा, इतना फर्क, इतनी बात याद रखिएगा, नहीं तो पता चला कि तकरीर हुई, कुछ समझाना चाह रहा था, बाद में आप समझ कुछ गए, है ना, तो गड़बड़ हो जाएगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। सुनिए, तो अल्लाह का खौफ उलामा को है, और अल्लाह फरमाता है कि वलियों को दुनिया का कोई गम नहीं, वलियों को दुनिया का कोई गम नहीं है, आखिरत के लिए कोई गम नहीं है, उनको हुज़्न मलाल नहीं है, तकलीफ नहीं है, तो ईमान लाने वाला, तकवा करने वाला, वो अल्लाह का वली होता है। और अल्लाह फरमाता है कि इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा। अल्लाह तबारक व तआला ने जमीन भी बनाई, अल्लाह तबारक व तआला ने आसमान बनाए, अल्लाह तबारक व तआला ने सितारों से आसमान को सजाया, अल्लाह तबारक व तआला ने सूरज को चमकाया, अल्लाह ने चांद में रोशनी अता की है। ऐ लोगों सुनो, इतना सारा कुछ बनाया, तमाम मखलूकात रब ने बनाई, लेकिन रब कहता है कि चांद भी मुझसे डरने की तरह नहीं डरता, सूरज भी डरने की तरह नहीं डरता, आसमान भी डरने की तरह नहीं डरता, जमीन भी नहीं डरती है, धरती भी नहीं डरती, ये चांद सितारे, ये जमीन जायदाद, कुछ भी रब से डरने की तरह नहीं डरते। इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, अल्लाह से डरने की तरह डरते हैं तो उलमाए किराम डरते हैं, आलिम और उलमा ये अल्लाह से डरने की तरह डरते हैं। तो पता चला कि अल्लाह से जो डरने वाला होगा, दुनिया में खौफ उसको किसी का नहीं होगा। अब दुनिया में डरने वाला, मुरीद से डरने वाला कि मैं हक बोलूंगा तो मुरीदी मेरी खत्म हो जाएगी, पैसा पीर नहीं दे, मुरीद नहीं देंगे। ऐसे भी पीर हैं, आजकल हम लोगों ने देखा है कि वो हक की बात बोलने नहीं देते और हक की बात सुनते नहीं, सुनाते भी नहीं, और नमाज से भी कोशों दूर रहते हैं और कहते हैं कि हम पीर हैं। बेटा पीर है तू, पीर नहीं है। के लिए तकवा शर्त है, और आलिम उलमा जिसके अंदर अल्लाह का खौफ होता है, वो किसी माई के लाल से डरता नहीं है। अरे भाई, दिल एक है, और इस दिल में सिर्फ क्या कहते हैं, मोहब्बत अल्लाह और अल्लाह के रसूल की है। अब हमने अपने दिल को मोहब्बत से पुर कर दिया, और अपने आप को अल्लाह के खौफ से अपने आप को लर्जा कर दिया। अब बताओ, एक ही दिल है, अब तुम कहोगे कि तुम्हारी मोहब्बत भी मैं इसमें रखूं और तुम्हारा डर भी मैं इसमें रखूं, जगह ही नहीं रखूंगा।
अरे जगह रहती तब तुम पैसा वाला हो, गाड़ी वाला हो, खेत वाला हो, खलियान वाला हो, बाड़ी वाला हो, अरे बंगले वाले हो, तुम्हारा खौफ अब मुझको होता है। ऐसा मत बोलना, ऐसा बोलना, हमारे पीर के बारे में ऐसा बोलना। एक आम गिर गया था एक पीर क्या कहते हैं मुरीद के ऊपर, तो वो मरा नहीं जिंदा हो गया। ये पीर की करामत, ये कौन करामत है रे बाबा। अब ऐसा करके हक्कानी पीर बैठे रहते हैं और जोहला पीर आगे बढ़ जाते हैं, ऐसा थोड़ी होता है। चलेगा रे बाबा? नहीं चलेगा। तो सुनो, आज मैं आपको बता रहा हूं, याद रखना, रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान सुनो। अल्लाह फरमाता है कमा अरसलना फीकुम रसूलन मिनकुम यतलू अलैकुम आयातिना व युज़क्किकुम व युअल्लिमुकुमुल किताब वल हिकमा व युअल्लिमुकुम मा लम तकुनु तालबून। सूरह बकरा आयत नंबर 151। अल्लाह क्या फरमाता है कि तुम्हें हमने फतेह मक्का अता फरमाया, जैसा के फतेह मक्का से भी पहले हमने भेजा है रसूलन मिनकुम। ये रसूल नकेरा आया है तनवीर यहां ताज़ीम के लिए। उलमाए किराम बैठे हैं, यानी आज़ीम शान बहुत बड़ा रसूल हमने भेजा। कमा अरसलना फीकुम, कहां भेजा? फी ज़र्फियत के लिए आता है। उलमाए किराम समझते हैं, मैं इस चीज को समझा देता। फी का क्या माना है? एक वो होता है अपर, आप, एक होता है इन और एक होता है अंडर। बात समझ रहे हैं आप लोग? इन का मतलब यह होता है जो पैक हो, अंदर हो। अंडर का मतलब जो चीज नीचे हो। अप का मतलब जो ऊपर हो। अल्लाह तबारक व तआला ने यह नहीं कहा कमा अरसलना अलैकुम। अल्लाह तबारक व तआला ने यह भी नहीं कमा अरसलना इलैकुम लदाकुम इंदकुम। लदा इंदा कुछ नहीं कहा हजरत, फीकुम कहा। और जैसा कि हमने तुम्हारे अंदर, तुम्हारे भीतर एक अजीम शान रसूल को भेजा, तुम्हारे अंदर भेजा। अब अंदर कहां होता है भाई? बॉडी के ऊपर के अंदर। बताओ, तुम्हारे पास 5 चीजें हैं, याद रखना। एक तुम्हारा जिस्म, दिमाग है, दिल है, रूह है, नफ्स अम्मारा है। कितनी चीजें हुई? 5 चीजें हुई, नहीं हुई? 5 चीजें। अब रसूल तुम्हारे अंदर है। अब कितना अंदर है और कितना करीब है? उठाओ सूरह अहज़ाब आयत नंबर 6। अल्लाह फरमाता है, लोगों तवज्जो के साथ सुनना। अल्लाह अल्लाह अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम। ऐ लोगों तवज्जो करो, अल्लाह फरमाता है, लोगों मेरे मुस्तफा को ढूंढने के लिए तुम्हें मक्का आने की जरूरत नहीं है, मदीना जाने की जरूरत नहीं है, दर-बदर ठोकरें खाने की जरूरत नहीं है। अगर तुम मोमिन हो तो तुम्हारे जान से भी ज्यादा मेरे महबूब करीब है। तुम्हारी जान से भी ज्यादा करीब कहां है? महबूब तुम्हारे अंदर है। अब रसूल को हमारे अंदर भेजा और हमारी जान से भी ज्यादा अंदर। मापो कैसे मापोगे? अब भाई जब रसूल हमारे अंदर रहते तो हमारा अंदर जो है ये रसूल का घर हो गया, नहीं हो गया? अब घर में रबीउल का घर है तो साफ कौन करेगा? अब्दुल जाके करेगा? बक्कर का घर है तो उमर जाकर के साफ करेगा? रफीकुल का घर है तो सोफीकुल जाकर के घर साफ करेगा? कौन साफ करेगा बताओ? सुनो, आज मैं सोचा था कि जम के तकरीर करूंगा, लेकिन जम के नहीं, समझा के करूंगा। समझ लो, समझ लो, जम के बहुत लोग करते हैं, जरा थम के भी कर दूं मैं। सुनो, तवज्जो के साथ सुनो। रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हमारे अंदर रहते हैं तो हमारी ये बॉडी जो है ये रसूल पाक का घर होगा। मोमिन का दिल रसूल की जलवागाह है। मोमिन का दिल रसूल की जलवागाह है। अब रसूल मोमिनों के दिल में जलवागर है।
अब तुम्हारा दिल अगर नापाक हो जाए, तुम्हारा दिल अगर गंदा हो जाए, तुम्हारा दिल अगर काला हो जाए, तुम्हारा दिल अगर पीर बन करके नमाज छोड़ने को कहे, तो फिर सुन, अमा अरसलना फीकुम रसूलन मिनकुम यतलू अलैकुम आयातिना, ये रसूल जो हमने तुम्हारे अंदर भेजा है तो ये हमारी आयतों को तुमको पढ़ पढ़ के सुनाता है। वयुज़क्किकुम, और तुमने जो नमाज छोड़ करके मुरीदों को लूट करके अपने दिल को गंदा कर लिया, बाप माँ को परेशान करके अपने दिल को गंदा कर लिया, पड़ोसी का हक मार के अपने आप को गंदा कर लिया, तो बेटा सुन, तेरा दिल जो गंदा हो गया तो अल्लाह फरमाता है युज़क्किकुम, तुम्हारे दिलों को अल्लाह के रसूल पाक करते हैं। बोलो, अरे बोलो भाई, कब बोलोगे? चिल्ला चिल्ला के खूब रूप तमाशा करके बोलूं तभी बोलोगे क्या? है? अब रसूल तुम्हारा दिल साफ करते हैं। अब देखो, कोई पहले बर्तन को साफ किया जाता है, घर को पहले साफ किया जाता है, फिर बिस्तर बाद में लगाया जाता है। बर्तन पहले साफ करो, फिर उसके बाद कुछ उसमें खाना रखना है तो रखो। अब रसूल तुम्हारे दिल को पहले साफ करते हैं, फिर साफ करने के बाद वयुज़क्किकुम वयुअल्लिमुकुमुल किताबा, अब साफ करने के बाद अल्लाह के रसूल तुम्हें कुरान सिखाते हैं, वल हिकमा, और हदीस सिखाते हैं, वयुअल्लिमुकुम मा लम तकुनु तालमून, और वो चीजें सिखाते हैं जो तुम नहीं जानते हो। अब इस आयत करीमा से पता ये चला, इस आयत करीमा से पता ये चला कि रसूल हमारे दिलों को साफ करते हैं। अब ये वहाबिया, ये अहले हदीस, ये देवबंदी अगर कहे कि रसूल हाजिर नहीं है, रसूल मौजूद नहीं है, रसूल मर के मट्टी में मिल गए, तो उन खबीसों से कह दो अल्लाह तो ये कहता है कि रसूल तुम्हारे दिलों के अंदर है और तुम्हारी जान से भी ज्यादा करीब, और रसूल हमारे दिलों को पाक भी करते हैं, साफ सुथरा भी करते हैं। कुरान भी रसूल हमें पढ़ाते हैं, हिकमत भी हमें सिखाते हैं, जो नहीं जानते वो रसूल हमें पढ़ाते हैं। तो ये फिर कैसे मुमकिन, ये कैसे हो रहा है, ये कैसे होगा? नहीं हो सकता। फिर जब नहीं हो सकता तो पता चला कि रसूल पाक तमाम के तमाम मोमिनों के घर में और दिलों में मौजूद है, तो रसूल हाजिर भी है, रसूल नाजिर भी है। अब सुनो, तफसीर रूहुल बयान में आता है, इन्नन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मौजूदुन फी कुल्लि बुयूतिल इस्लाम, बेशक नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तमाम मोमिनों के घर में मौजूद है। बोल दो ना सुभान अल्लाह। अब रसूल हमारे तमाम मोमिनों के घर में मौजूद है, तो लोगों, जो मोमिन नहीं होगा, जो वहाबी होगा, जो मोमिन नहीं होगा, जो देवबंदी होगा, जो मोमिन नहीं होगा, कादियानी होगा, जो मोमिन नहीं होगा, राफिजी होगा, जो मोमिन नहीं होगा, फरासी होगा, जो मोमिन नहीं होगा, अहले हदीस होगा, तो क्या पता दिल में उनके रसूल हो सकते हैं और उनके दिलों को रसूल पाक करेंगे? नहीं करेंगे। अब वो रसूल को दिल में ढूंढेगा तो मिलेंगे ही नहीं। अब जब मिलेगा नहीं तो कहेंगे कि रसूल मर के मिट्टी में मिल गए। पता चला, मालूम हुआ लोगों कि सबसे पहले रसूल पाक की मोहब्बत जरूरी है। उठाओ मुस्लिम शरीफ, अल्लाह के प्यारे हबीब की हदीस है, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नास अजमईन। तुम में से कोई उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता जब तक कि मैं मुहम्मदुर रसूलुल्लाह तुम्हारे नजदीक, तुम्हारे भाई बाप, तुम्हारी आल औलाद, तुम्हारी बेटियां, तुम्हारे बेटे, तुम्हारे माँ बाप, तुम्हारे दोस्त बंधु तमाम से ज्यादा महबूब ना हो जाऊं। पता चला कि पहले मोमिन होने के लिए मोहब्बत रसूल शर्त है। मोमिन होने के लिए मोहब्बत जरूरी है, ना नमाज जरूरी है, ना रोजा जरूरी है। मोमिन होने के लिए मोहब्बत जरूरी है, और इसीलिए तो इसी मोहब्बत की बिना पर सिद्दीक अकबर सबसे पहले मोमिन बने और वो सिद्दीक अकबर बन गए, इसी मोहब्बत की बिना। और इसीलिए अल्लामा इकबाल ने कहा है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये करा कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। इसीलिए किसी शायर ने कहा है कि मालिक ने बनाए सारे ये दोनों जहां के नज़ारे नबी के
कैसा मुकर्रिर आया रे बाबा, तकरीर करते करते कव्वाली शुरू कर दिया। ये कव्वाली नहीं है, रसूल पाक की नात है। ढोल ढाल नहीं है तो जायज है। रसूल पाक फरमाते इन्नी उबासुल महबिल मज़ामीर, मुझे दुनिया में इसलिए भेजा गया ताकि मैं मज़ामीर को, ढोल डबका ये सब जो बजाया जाता है, हारमोनियम तबले जो बजाया जाता है, इनको खत्म करो। बोलो सुभान अल्लाह। अब रसूल कह रहे हैं कि ढोल डबका मैं खत्म करने के लिए आया हूं, तबला खत्म करने के लिए आया हूं। और ये पैसा वाले, मुरीदों का जेब काटने वाले पीर कहते हैं क्या है? कहते हैं कि भाई ये तो हमारी रूह की ग़िज़ा है। अरे लोगों सुनो, रूह की ग़िज़ा अगर हो तो रसूल पाक की मोहब्बत हो, रूह की ग़िज़ा अगर हो तो हदीस व कुरान हो, रूह की अगर ग़िज़ा जो हो तो रसूल पाक पर दुरूद पढ़ना हो, ना कि ढोल बजाना। या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद। एक चीज और बता दूं, एक चीज और बता देता हूं, सुनो, ये भी याद रखना, बड़ा काम आएगा भाई। रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बारे में आप लोगों ने जान लिया कि वो हमारे दिल में रहते हैं। हजरत को देखिए तो इनकी आंख बंद है, नीचे मुंह है, सीना की तरफ देखे हुए है कि नहीं? ये सिफत किन लोगों की है जानते हैं? ये सिफत बुजुर्गों की है, दीवानों की है कि नहीं? ये बोलोगे नहीं बोलोगे? तो किसी ने खूब कहा है हजरत कि उल्टे ही चाल चलते हैं दीवान गाने इश्क, आंखों को बंद करते हैं दीदार के लिए, आंखों को बंद करते हैं दीदार के लिए। अब रसूल हमारे दिल में मौजूद, जान से भी ज्यादा करीब मौजूद, आंखों को बंद किया, दिल की तरफ तवज्जो की, रसूल का जलवा नजर आ गया। अब इस शेर का मतलब इतना खतरनाक मतलब, कौन यहां तक पहुंचे? जब तक दीवाना नहीं होगा पहुंचना मुश्किल है। दोस्तों, अगर कुरान पाक से तकरीर करूं ना तो वहाबियों के दांत टूट जाए। हदीस में जाना तो बात की बात है, अगर कुरान से ही तकरीर करूंगा ना तो दांत टूट जाए। अब बताओ, समझो तुमने कभी ज़िना कर लिया, गुनाह कर लिया, चोरी कर ली, चमारी कर ली, अब तुम तौबा करना चाहते हो, तौबा करना चाहते हो तो तौबा करोगे तो तौबा घर में करोगे, मक्का में करोगे, मदीना में करोगे, कहां करोगे? घर में करोगे, बाड़ी में करोगे? अरे पगले सुनो, अल्लाह फरमाता है वला अन्नहुम इत्तलमु अनफुसहुम जाऊका फस्तगफरुल्लाह वस्तगफर लहुमुर रसूल लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा। सूरह निसा आयत नंबर 64 है। बोलो, अल्लाह फरमाता है लोगों सुनो, अगर तुम अपने जान पर जुल्म करो, गुनाह करो, बोझल हो जाओ, तौबा करने की नीयत हो तो तौबा करोगे, कैसे करोगे? अल्लाह फरमाता है महबूब, अगर वो अपने जानों पर जुल्म करे, गुनाह करे, चोरी करे, चमारी करे, गुंडागर्दी कर ले और फिर तौबा करने की नीयत हो जाए तो जाऊ का आपकी बारगाह में आए। आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिद दीन और मिल्लत इरशाद फरमाते हैं, वही रब है जिसने तुझको हमतन करम बनाया और हमें भीख मांगने को तेरा आस्था बताया। तेरा आस्था बताया, रसूल पाक का आस्था बताया। कई लोग गुनाह करोगे तो रसूल पाक की बारगाह में जाओ। अब वो जाकर के अल्लाह की बारगाह में तौबा करे, फस्तगफिरुल्लाह,
अल्लाह की बारगाह में तौबा करे, अल्लाह से कहे कि मौला मैंने ज़िना किया, चोरी की है, डकैती की है, बाप माँ को परेशान किया था, नमाज नहीं पढ़ी थी, खुदाए पाक तेरी बारगाह में अर्जी है कि हमें माफ कर दो। अब वहाबियों को सुनाओ बेटा, सुन रे सुन, अल्लाह फरमाता है कि वो मुझसे तो तौबा करेगा, मेरी बारगाह में हाथ उठा करके दुआ मांगेगा, लेकिन ऐ रसूल वस्तगफर लहुमुर रसूल, ऐ रसूल अगर आप इशारा कर दे, आपकी तरफ से सिग्नल हो जाए कि मौला ये मेरी उम्मत है और तेरी बारगाह में तौबा करता है, मेरे पास आकर के करता है, कबूल कर लो, तो अल्लाह फरमाता है लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा, ऐ महबूब आपकी वो उम्मत मुझको बहुत बड़ा तौबा कबूल करने वाला और रहम नाजिल करने वाला पाएगा। अब लोगों मेरे पास টাকা নাই, পয়সা নাই, গাড়ি নাই, বাড়ি নাই, সামনে আরো সাগর যাব কেমন করে যাব? तौबा तो करनी है, गुनाह तो मैंने किया है, अब रसूल की बारगाह में जाना जरूरी है, तो अब रसूल की बारगाह में जाऊं तो कैसे जाऊं, और जब तक नहीं जाऊंगा तौबा कबूल नहीं होगी, करो तो क्या करूं? আর সামনে আমার আরো সাগর, কেমনে হব পার, আর পাখির মতো নাই যে আমার ডানা উপর পার গো আল্লাহ, ডানা উপর পার। কেমন করে যাবো খোদা সেই রাসূলের দ্বারে, যেই রাসূলের দ্বারে গেলে আমার তওবা কবুল হবে? মাওলা যাওয়ার মতো ক্ষমতা নাই, টাকা নাই, গাড়ি নাই, বাড়ি নাই, আমি তো গরিব, আমি কত কষ্ট করি ছেলে মেয়েদেরকে কোন রকম পুষি খোদা, আমার কি ক্ষমা হবে না? পাপীরা শুনো, ওরে বন্ধ পাপী তুই নবীজির দ্বারেতে চলে যা কাঁদিতে কাঁদিতে। बोल रे भाई अरे छूट के बोलो, जरा मचल के बोलो सुभान अल्लाह। नमाज पढ़ते हो नहीं पढ़ते? कितने लोग नमाज पढ़ते? हाथ से अब हाथ में, इतने ही लोग नमाज पढ़ते हैं, सब पगले हैं का? आज ससुर से जब बिहार करने के लिए तो बोले घूम लेंगे, गाड़ी लेंगे, बाड़ी लेंगे, ये लेंगे, वो लेंगे, वो बेटी भी लेगा, गाड़ी भी लेगा, पगला का बेटा पगला, ये सब जायज है रे? कहां से सीख के आया था? बिहा करेगा तो अपनी बीवी को कुछ पैसा दे के लाना पड़ेगा रे बेटा, उसको मुहर कहते हैं, कहते नहीं कहते? उसको मुहर बोलते हैं। शरीयत का नियम है कि बिहा करके लाओगे ससुर की बेटी को, अब दूल्हा के साथ दुल्हन आएगी तो दुल्हन को पैसा दे करके लाओ, 10 दिरहम से कम ना हो, मोटा मोटी आज के जमाने में इसका हिसाब वही 1800 से 2200 के करीब होता है, मतलब उतार चढ़ाव होता रहता है, कभी मतलब चांदी की कीमत जो है बढ़ती है, कभी घटती है ना, इसकी वजह से उतार चढ़ाव होता रहता है ना? ये पैसा दे करके लाना पड़ेगा। अब तुमने उसके बाप से 2 लाख ले लिया तो दिया कहाँ रे बेटा? तू चोरी करके लाया, 1500 दिखा करके 2 लाख ठग लिया, तुमसे बड़ा डकैत कौन होगा? अरे ये पगला का बेटा पगला ऐसा है कि डकैत करने के लिए कोई डकैती करने के लिए आता है, उसकी बेटी को भी दे देता है कि भाई ले जा, पैसा भी दे देता है। कैसा मतलब डकैत है और ये कैसा समाज है रे बाबा। खबरदार हो जाओ, ये तुम जो लेते हो ना ससुर से, ये लेना हराम है, नाजायज है, इससे जो खून बनेगा ये भी नाजायज है, हराम है। हराम खून लेकर के दुनिया में जियोगे, मरोगे तो जन्नत जाओगे? पगला कभी नहीं हो सकता। तुम 100 पीर के पास जाकर के मुरीद हो जाओ फिर भी नहीं जाओगे, नहीं जाओगे, हराम का खून है तुम्हारे बदन में। जहन्नम की आग में तुमको जला करके खाक किया जाएगा, राख किया जाएगा। सुनो, नमाज, अल्लाह 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 तबारक व तआला ने नमाज पढ़ने को फर्ज कहा है। अब तुम नमाज पढ़ते हो, अब नमाज में एक ऐसा जलसा है रे बाबा, जब तक तुम जलसा खत्म नहीं करोगे
ये मिलाद नहीं पढ़ोगे, जब तक ये मिलाद की महफिल खत्म ना हो जाए, नमाज के अंदर उस महफिल को जब तक खत्म नहीं करोगे तब तक अल्लाह तुमको नमाज से बाहर जाने ही नहीं देगा। बोलोगे नहीं बोलोगे? अरे बोलना रे बेटा, ए बाबा बोल, तू लोग काहे नहीं बोलता है? वो लोग नहीं बोलते, नहीं बोलो, तू बोल सुभान अल्लाह बोलो। वो जलसा क्या है जानते हैं? आपने पहली रकात पढ़ ली, दूसरी रकात पढ़ करके आप बैठते नहीं बैठते। अब 2 रकात वाली है तो दूसरी रकात में सलाम फिरोगे, 3 रकात वाली है तो तीसरी में फिरोगे, 4 रकात वाली है तो चौथी में फिरोगे, और 8 रकात वाली नमाज है तो 8वीं में फिरोगे। हंसना मत रे बाबा, 8 रकात नफल नमाज पढ़ना जायज है एक नियत से, है ना? रात की जो नफल नमाज है वो एक ही नियत से 8 पढ़ना जायज है, इतना याद रखो। सुनो, आप तुम नमाज पढ़ोगे, जलसा में बैठोगे, उसको कादा अखीरा में कहते हैं। कादा का माना बैठना, जलसा का माना भी बैठना। जलसा अखीरा कहो या कादा अखीरा कहो, बात एक ही है। उलमाए किराम बैठे, मैं गलत कह रहा हूं? गलत नहीं है, माशाअल्लाह। तो उस जलसे में तुम पहले क्या करते हो? आलिम उलमा जैसे खुतबा पढ़ते हैं, अल्लाह की शान बयान करते हैं, तो उस जलसे में पहले तुम पढ़ो अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावात, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी, अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन। पढ़ोगे नहीं पढ़ोगे? अब तुम खुतबा ही में रसूल पाक को सलाम कर रहे हो, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी, ए नबी आप पर सलाम, ओगो नबी আপনাকে সালাম। अब নবী আপনার সালামের জবাব দিচ্ছেন আসসালামু আলাইনা ওয়া আলা ইবাদিল্লাহিস সালিহিন। হ্যাঁ, আমাদের প্রত্যেকের উপরে সালাম হোক, আর যারা আল্লাহর বৈশিষ্ট্য বান্দা তাদের উপরেও সালাম হোক। বলেন না সুবহানাল্লাহ। अब पूछा गलो যে এই জালসাতে নবী পাককে আপনি সালাম বলছেন, আর আলাইকা তোমাকে সালাম। এখানে কেউ আছে যে যার মা বাড়িতে আছে? তোমার মা বাড়িতে আছে না? এখানে আছে বাড়িতে? ধরো এটা বোতল আছে, মা তোকে দিনুলে বাড়তে আছে, আমাকে পাগলা কইবে না মানে জি? কইবে না? আরে বাবা পাগলা বলবে কি বলবে না জি? কেমন তোমরা জি কথা কইছো না কেন জি? হাংরে দিকে যদি এরকম কথা কই কেন এই মানুষ আস্তে আস্তে সব সুবহানাল্লাহ মাশাআল্লাহ কই বসে থাকবে। এই শুনে, মা আমার এখানে নাই, এবার মাকে বলছি মা লে তোকে দিচ্ছি। মানুষকে বিশালা পাগলা হয়ে গেছে নাকি রে, মা আমার এখানে নাই, বলছি মা লে। এই বাবা শুনো, নামাজ বলছো আসসালামু আলাইকা, নবী যদি এখানে নাই তো নবী তোমাকে সালাম কেন বলছিস? বুঝা গেল যে নবী আমার জান থেকে বেশি করিবে ছিল, মুমিনের দিলে ছিল, আর ওই দিলে যেই নবী বাস করছে ওই নবীকে বলছি আসসালামু আলাইকা। এই নবী যে আমার দিলের মধ্যে আমার জান থেকে বেশি নিকটে রয়েছে, তোমাকে সালাম রইল। আল্লাহর নবী সালামের জবাব আপনার মুখ দ্বারাই দিচ্ছেন, আসসালামু আলাইনা ওয়া ইবাদিল্লাহিস সালিহিন। বলেন সুবহানাল্লাহ। সুবহানাল্লাহ। সালামের জবাব নবী পাক সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম দিলেন, খুতবা শেষ। अब ये পরে আপনি কি বলছেন? দুরূদ পড়ছেন না পড়েন না গো? দুরূদ পড়েন না পড়েন না? আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মাদ ওয়া আলা আলি মুহাম্মাদ কামা সাল্লাইতা আলা ইব্রাহিম ওয়া আলা আলি ইব্রাহিম ইন্নাকা হামিদুম মাজিদ। আল্লাহুম্মা বারিক আলা মুহাম্মাদ ওয়া আলা আলি মুহাম্মাদ কামা বারাকতা আলা ইব্রাহিম ওয়া আলা আলি ইব্রাহিম ইন্নাকা হামিদুম মাজিদ। বলুন না? अरे बोलो सुभान अल्लाह, जरा मचल के बोलो सुभान अल्लाह। अपनी बोलছেন হে আল্লাহ। নবীর উপরে সালাম হোক, দুরূদ হোক, যেমন ইব্রাহিম আলাইহিস সালামের উপরে হয়েছে, ওনার আলা আওলাদের উপরে হয়েছে। নবী পাকের উপরে বরকত অবতীর্ণ হোক, যেমন ইব্রাহিম আলাইহিস সালামের উপরে হয়েছে, আর ইব্রাহিম আলাইহিস সালামের আলা আওলাদের উপরে হয়েছে। ইন্নাকা হামিদুম মাজিদ, নিশ্চয় তুমি হামিদ, তুমি নিশ্চয় তুমি মাজিদ, বুজুর্গিওয়ালা, হামদওয়ালা। হামিদুন ফাইলুন সিফাতে মুশাব্বার সেগা, এখানে ওয়ালা ওয়ালা তরজমা হয় না, হয় না জি? হ্যাঁ, আলিম উলামা বসে আছেন, তালিব ইলমিরা বসে আছেন। হামদওয়ালা, বুজুর্গিওয়ালা। আচ্ছা, দুরূদ পড়লেন কেন? আল্লাহ তাবারাক ওয়া তাআলা আপনাকে ইমতিহানে বসিয়ে দিয়েছে। ঠিক আছে, নবীর জন্য তো এখন তো জালসা আরম্ভ করেছিস, খুতবা তো পড়লি, দেখি তুই সুন্নি আছিস না ওয়াহাবি, তোর জালসাতে দুরূদ হইছে না হয় না দেখি, তোর জালসাতে দুরূদ হইছে না দেখি। এ বাবাজি ভাইরা আমার, তো সুন্নি মুসলমান নবী পাকের উপরে দুরূদ পড়তে আরম্ভ করে, আল্লাহর হামদ
আলোচনা করার পরে, খুতবা পড়ার পরে আর তাহিয়াত পড়ার পরে দুরূদ পড়তে আরম্ভ করলো। ওয়াহাবিরাও পড়ে, কিন্তু আমরা পড়ি মাসরুর হয়ে, ওরা পড়ে মাজবুর হয়ে। বলেন না সুবহানাল্লাহ। ওরা বাধ্য হয়ে পড়ে আর আমরা নবীর প্রেমে ডুবে পড়ি। বলেন না সুবহানাল্লাহ। এই দেশের মুসলমান বাবাজি ভাইরে আমার, আমার নবী পাকের শানে আপনি দুরুদে পাক পড়ে নিলেন। ও টানাটান শুনিয়েছো, গুনাহ করিয়েছো, ঠিক আছে বল। আপ তো তুই নবীর দরবারে নবীকে সালামও করলি, নবীর উপরে দুরূদও পড়লি, নবী তোর সালামের জবাবও দিয়ে দিয়েছে। আপ বল, নবী তোর দিকে মোতাওয়াজ্জা, নবী তাওয়াজ্জা তোর দিকে। এখন যা বলার আছে বল, তুই চাস কি? তখন বান্দা বলছে যে আল্লাহ, তোমার নবীর দরবারে যখন উপস্থিত হতে পেরেছি, আল্লাহুম্মা গফিরলি ওয়ালিদাইয়া ওয়ালিমান তাওয়ালাদা ওয়ালিজামিল মুমিনিনা ওয়াল মুমিনাত ওয়াল মুসলিমিনা ওয়াল মুসলিমাতি লা আহইয়া মিনহুম ওয়াল আমওয়াত ইন্নাকা মুজিবুদ দাওয়াত বিরহমাতিকা ইয়া আরহামার রাহিমিন। আল্লাহ, আগে তুমি তো আমাকে বখশে দাও, আমি খুব গুনাহ করেছি। খোদা আগে আমাকে বখশাও, আমাকে মাফ করো। আমাকে বলতে ভালো লাগে না বাবা, আমি রাজমহলের মানুষ, বুঝতে পারলেন না? আমাকে যদি 100 বার চিল্লা চিল্লা বলি, বুঝতে পারলেন? জোশই আছে না? আমাকে কেমন আছে? হ্যাঁ, আল্লাহ আমাকে বখশে দাও, মাওলা আমাকে বখশে দাও, আমাকে মাফ করো। বলে বলে তাই আমার বাপ মাকে বখশে দাও, দাদা দাদিকে বখশে দাও, যারা আমার বাপ মাকে জন্ম দিয়েছে তাদেরকে বখশে দাও, মুমিনিন মুমিনাতকে বখশে দাও, মুসলিমিন মুসলিমাতকে বখশে দাও, যারা জিন্দা তাদেরকে বখশে দাও, যারা মরে গেছে তাদেরকে বখশে দাও। মাওলা বখশে দাও, তুমি মাফ করে দাও। আর দেখেন বখশিশের দোয়া এখানে করা হচ্ছে। আর আল্লাহ তাবারাক ওয়া তাআলা বলেছিল, যদি গুনাহ করা হয় নবীর দরবারে গিয়ে তওবা করো, তোমার তওবা আল্লাহ তাবারাক ওয়া তাআলা কবুল করবে যদি নবী ইশারা করে দেয়। বিশ্বের মুসলমান বাবাজি ভাইরা আমার, সময় শেষ। এইবার আপনাকে এখানে আমি একটু হুজুর সংক্ষিপ্ত খালি এখানে একটু কথা বলে দিই। এইবার আপনি যখন নবী পাক সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লামকে হাজির নাজির মেনে গেলেন, ওনাকে সালাম করলেন, দুরুদ পড়লেন আর আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাচ্ছেন, এইবারে বলেন তো এখানে সবারই কি বাবা মা বেঁচে আছে গো? হ্যাঁ, সবারই বেঁচে আছে? কাহরি মরে গেছে? হ্যাঁ, তো যার মরে গেছে ও বলছে যে আল্লাহ আমার বাপ মাকে বখশে দাও, আর যার মরেনি জিন্দা আছে ও বলছে যে আমার বাপ মাকে বখশে দাও। এইবারে বাবাজি ভাইরা আমার, আপনি যেই দিন আপনার বাবা মা মরেছে সেই দিনে নামাজ এটা পড়ছেন, তারপরে দিনে পড়ছেন, তারপরে দিনে পড়ছেন, তারপরে দিনে পড়ছেন, যতদিন নামাজ পড়ছেন ততদিন আপনি এটাই পড়ছেন। এইবারে বলেন চতুর্থ দিন পড়েন না জি? চতুর্থ দিনে পড়লেন তো নামাজের মধ্যে তো চাহারম ঢুকে আছে জি? নামাজের মধ্যে চাহারম ঢুকে আছে না নাই? চাহারম নামাজের মধ্যে ঢুকে আছে যে আল্লাহ আমার মনে মাঠে আমার বাপ মা তো মরে গেছে, আগে মরেছে না মরেনি রে বাবা? যাদের মরে গেছে তারা মৃত্যু বাবা মায়ের জন্য বলছে আল্লাহুম্মা গফিরলি ওয়ালিদাইয়া, আল্লাহ আমাকে মাফ করো, আমার মরা বাপ মাকে মাফ করে দাও। আরে বাবা, বুঝা গেল যে নামাজটাও সাপোর্ট করছে তো সুন্নি মুসলমানকে সাপোর্ট করছে, সুন্নিদের আমলকে সাপোর্ট করছে, আর সুন্নিদের আকাইদকে সাপোর্ট করছে। নামাজ যখন সুন্নিদের পক্ষে, তো ওয়াহাবিদের পক্ষে নামাজ নাই, ওয়াহাবিদের পক্ষে নবী নাই, ওয়াহাবিদের পক্ষে আল্লাহ যখন নাই, তাহলে পাক্কা মুসলমান তারা নয়, পাক্কা মুসলমান আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত। একটি হাদিস শুনিয়ে নিজের বক্তব্য ইতি করছে, একবার বলে দেন সুবহানাল্লাহ। আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لا يأتين على امتي كما اتى على بني اسرائيل حزب النال بالنال حتى ان كان منهم من اتى امه علانية لكان في امتي من يصنع ذلك ان بني اسرائيل تفرقت على 72 ملة وتفترق امتي على 73 ملة كلهم في النار الا ملة واحدة قالوا ما هي يا رسول الله। এটা দেখেন, এ বলছে যে ইয়া রাসূলুল্লাহ কথা হারাম, আর সাহাবায়ে কেরাম বলছেন মা হিয়া ইয়া রাসূলুল্লাহ। হ্যাঁ, কেমন কথা রে বাবা? এ মা হিয়া ইয়া রাসূলুল্লাহ ইয়া হাবিবাল্লাহ قال رسول الله حبيب الله صلى الله تعالى عليه وسلم ما আসহাবি। বল দো সুবহানাল্লাহ। আল্লাহর নবী বললেন যে যেমন বনি ইসরাইলের সময় ছিল সেই রকম সময় আমার উম্মতেরও আসবে। জুতাকে বরাবর করে যেমন মানুষ রাখে সেই রকম বরাবরই আমার উম্মত ওই সেই ইহুদিদের সঙ্গে করবে। এমন পর্যন্ত ইহুদিরা যদি নিজের মায়ের সঙ্গে কেউ জেনা করে থাকে, আমার উম্মতের মধ্যে এরকম হবে যে নিজের মায়ের সঙ্গে জেনা করবে, নাউজুবিল্লাহ। আর বনি ইসরাইল 72 দলে বিভক্ত হয়েছিল, আমার উম্মতেরা 73 দলে বিভক্ত হবে। একটাই জান্নাতে যাবে, সবাই জাহান্নামে যাবে।
সাহাবাই কিরাম তখন বলছে বাপরে জাহান্নামে যখন একটাই যাবে তো আমরা কি কোথায় যাবো না যাবো? সাহাবাই কিরামের কত ডর, জিজ্ঞাসা করছেন তাড়াতাড়ি করে। তো সাহাবাই কিরামকে বলছেন যে ও সাহাবা শোনো, মা আনা আলাইহি ওয়া সাহাবী, যারা আমার এবং আমার সাহাবার সুন্নাতের উপরে কায়েম থাকবে তারা যাবে জান্নাতে। তখন সাহাবাই কেরাম বুঝে গেলেন যে আমরা সাহাবা যখন তো আমরা জান্নাতি সবাই। আর আল্লাহ ওয়াদা করে দিয়েছেন যে যতগুলো সাহাবা আছে সবাই জান্নাতি, সবাই জান্নাতি। বিশ্বের মুসলমান বাবাজি ভাইরা আমার, তাহলে বোঝা গেল যে এই যে টাকাওয়ালা, পয়সাওয়ালা, ক্ষেতওয়ালা, খালিয়ানওয়ালা মডলরা বলছে ওরাও কালমা পড়ছে আমরাও কালমা পড়ছিবে, ওরাও নামাজ পড়ছে আমরাও পড়ছিবে, ওর কাছে কোরআন আলাদা হবে, হাঙ্গরে যেমন কোরআন আভেও কোরআন বলতে এরকমই হয়। এই মডলকে মারানোর প্যাট ফুটিয়ে রেখে থাকে। ওকে বলেন যে এই বেটা মডল হয়েছিস, তুই মোল্লাইগিরি কর। ওই মৌলবীরা যেটা বলবে, আলিমুল আমাদের যেটা কথা ওইটা তুই বলতে চেয়েছিস। হ্যাঁ, তুই ফিজিশিয়ান হয়ে সার্জারি করতে চেয়েছিস, মানুষকে মেরে ফেলবি। তুই ওষুধ দেওয়ার কাজ আছে, ওষুধ দে। তুই পেট কাটা, তুই মানুষের অপারেশন করিস। শুনে বিশ্বের মুসলমান বাবাজি ভাইরা আমার, আল্লাহ নবী বলে দিলেন যে 73টা মুসলমানের মধ্যে মাত্র একটাই যাবে জান্নাতে, বাকি সবাই জাহান্নামে যাবে, সবাই জাহান্নামে যাবে। এই বিশ্বের মুসলমান এইবারও বলেন, যখন একটাই জাহান্নামে, একটাই জান্নাতে, সবই জাহান্নামে, তাহলে ওরা কালেমা পড়লে কি হবে? নবী পাক তো জানতেন যে কালেমাও পড়বে, নামাজও পড়বে, রোজাও রাখবে, সব কিছু করবে, কোরআনও পড়বে, হলক থেকে তাদের নিচে যাবে না, কোরআন নামবে না, জাহান্নামে যাবে। তো নবী পাক যাদেরকে মুসলমান মানেনি, তুমি কে হে যেন তাদেরকে মুসলমান মানবে আর তাদের কথা বলবে? আর যেই লোকটা নিজের মেয়ে তাদেরকে দিতে রাজি নাই, আর তুমি মডল হয়ে আর বলবে যে ওকে বেটি দিয়ে দাও, চলবে? ওরাও কালেমা পড়ে, নামাজ পড়ে। খবরদার হয়ে যাও এইরকম মডলের কাছ থেকে। আর এরা যদি তোমাকে বহিকে দিয়ে ওই ওয়াহাবীদের সঙ্গে লেনদেন করতে বলে, বিশ্বের মুসলমান বাবাজি ভাইরে আবার তাদের কাছে তাকে সঙ্গে সঙ্গে বরখাস্ত করে নিজের গ্রাম থেকে বাইকাট করে তাকে একদম সমাজ থেকে দূরে করে দিবেন, কারণ এই রকম লোক আপনাকে জাহান্নামে নিয়ে যাবে। আমি এখান থেকে নিজের বক্তব্য ইতি করছি। ওয়া মা আলাইনা ইল্লাল বালাগ। বলার মাধ্যমে ভুল ত্রুটি হয়ে থাকলে আল্লাহ যেন ক্ষমা করেন। আস্তাগফিরুল্লাহ রাব্বি মিন কুল্লি যামবি ওয়া আতুবু ইলাইহি। লা হাওলা ওয়া লা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহিল আলিয়্যিল আযীম। আসসালামু আলাইকুম।